So students, first question for today is, we have a car and this car accelerates from rest and it is accelerating with the acceleration alpha. So alpha is your acceleration. And then after some time, brakes are applied and car decelerates with the acceleration beta. So obviously if you are taking it positive as increasing, so this will be negative, okay? And it comes to rest. So starts from rest, again comes to rest, acceleration alpha and deceleration beta. So deceleration means if you are taking it positive as increase in the velocity, this here the velocity is decreasing, brakes are applied and velocity becomes zero. So you have to prove. So obviously, so that's point, suppose A, B and C. So where do we have the maximum velocity? Is it between A and B? Is it at B or is it between B and C? At B. Of course, at B. Good. So that's the correct answer. At B, the velocity was maximum. So let this maximum velocity be V. Okay. So you have to prove first this velocity equals to alpha beta upon alpha plus beta into t. Okay. And second, very important result, students, the total, let this total distance be x. Okay. So the total distance is equals to alpha beta upon twice of alpha plus beta t square. So these are the two results that you have to prove. Got the question? So how you are going to start with, students? Of course, you need V, okay? And the total time is t, students. This t is the total time. X is the total distance, t is the total time. So students, you know V, you know U, you know alpha, and time is also related here. So what you are going to use? V is equals to U plus AT. So in case 1, let this be case 1, okay, and let this be case second. So case 2, case 1. So this is case 1, this is case 2. So in case 1, this final velocity will be equals to initial velocity was 0 plus what was the acceleration in the first case, alpha, and what is the time, students, here? Okay, so we need to take the time here. You can take the time t1 here, okay? So what will be this time then? If you are taking that time as t1, what time will it be? You can take t2 and t2 will be equals to t minus t1. So instead of taking new variable, let us write it in the form of already existing variables that we have taken. So t minus t1, right? So this is alpha t1
Okay. Now in case second, what do we get? Here final velocity is 0. And what is the initial velocity here in second case? V. Very good. So minus beta into, what's the time taken in second case? T minus T1. Absolutely. So students, you have to prove that V, alpha, beta and T. So what you do not need? You need V, yes. I need alpha, yes. I need beta, yes. I need T, yes. But I don't want T1. So I have to eliminate T1. Okay. So how can you eliminate T1? You can find the value of T1 from here and you can put it in this equation. That will also work. Or you can find the value of T1 is equals to V upon alpha. Yes. So that's your equation 1. And from here you get T minus T1 is equals to, see this V will go that side, that will be minus V, and minus minus will cancel out and you will get V upon beta. So of course time is equals to, here this is V by beta. So that's your equation number 2. So you have to eliminate T1. So put the value of T1 here. What do you get? So T minus V upon alpha is equals to V upon beta. And this gives you T is equals to V upon alpha plus V upon beta. So V is common here. So 1 upon alpha plus 1 upon beta, and that's equals to V into alpha plus beta upon alpha beta. So you have to find the value of V. So V comes out to V. So this will go this side. So V is equals to alpha beta upon alpha plus beta into T. Okay, students? Yes, sir. Easy question. Now let us prove second part of this question. Second part says that we are not supposed to deal with the distance. Okay. So what is the formula for distance? S is equals to ut plus half at square. So in the first case, we have to assume the distance. So if in the first half, if the distance is suppose x1, what will be the distance in x2? X minus X1. Yes, x minus x1. Very good. So I can take here, in the case 1, u is equals to 0. So x1 will be equals to 1 by 2 acceleration alpha, time is t1, so alpha t1 square. Yes? Yes, sir. Now case second. So now students, what's your distance traveled? X minus X1. X minus x1, and that is equals to half into, Sir, negative. oh sorry, पहले ut तो लिखें, u कितना इस बार अपना, v V. टाइम
T minus T1? Yes or no? Yes, sir. Minus half into beta into T minus T1 whole square. Is it okay? Yes, sir. So like you have used, you put the value of T1 here or you just added. So similarly, tell me what do you need? You need X, you need alpha, you need beta and you need T. So you don't need X1, you don't need T1. You don't need both the things. So how can you remove T1? You already know the value of T1, students? Yes or no? Yes. So eliminate T1. So that's half alpha into V square by alpha square. Okay? So 1 alpha will be cancelled and you will get half V square divided by alpha. Yes? So here the first result you can use it, assume as equation 3. This as equation 4. This result. So this is your fourth equation. Now here also put the value of T1. So what do you get? X minus X1 equals to V into yes. Students, what is the value of T minus T1? Either you put the value of T or you put the value of T minus T1, it will be better. Huh. No problem, you will get the same answer. Either you put that value or this value. Yes. Yes, sir. So V by beta. So in the end, students, you have to bring T again. Okay. So we will be bringing T again. See, we have third formula also to bring T back if we have alpha, beta, V, something like this. Okay. So minus half into beta into, so T minus T1, V square, beta square. So what do we get? X minus X1 is equals to V square बीटा माइनस हाफ बीटा, और एक बीटा तो खत्म हो जाएगा यहां से, तो वी स्क्वायर बाय बीटा. तो 1 माइनस हाफ इज हाफ v square by beta. So that's your equation number 5. Okay. Now similarly like you did here with 1 and 2, you have x1 and you have x minus x1. So you can simply put the value of x1 here, students. So what do you get? X minus 1 by 2 v square by alpha is equals to half v square by beta. Agreed? You have to find x. So let us find x. This will go that side and half will be common.
Even v square will also be common. So what do you get, students, this side? One upon alpha plus one upon beta, right? This term will go that side, will be positive. Positive half v square by alpha, so v square by 2 is common, and you will left with 1 by beta plus 1 by alpha. Yes? Yes, sir. So students, this will gives you. Now do you need v here? No, sir. So put the value of v. You need alpha, beta, t. Alpha, beta, alpha plus beta and t. But you need t, but you don't need v. So put the value of v here. So that's the value of v, and then you have to do square of it also. So alpha square, beta square, alpha plus beta whole square, and then t square, right? V square, you have put the value of v square, and further alpha plus beta upon alpha beta. So students, alpha plus alpha beta cancels out. Alpha beta by alpha plus beta into t square plus beta, sir. Yes. So this alpha beta will also cancels out. And you get this is equals to alpha beta upon 2 alpha plus beta into t square. So that's your result, students. Yes, sir. So this total distance is this resembles with s is equal to ut plus half at square. So half at square, because u is equals to 0. So x is equal to, so here students, this a, can you see that this a is your, because acceleration was changing here, right? Yes. Do you remember, students? कैसे कंपेयर कर रहे हैं इसको? हार्मोनिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा. हाँ, हार्मोनिक तो नहीं है क्योंकि नीचे 2 आ गया. दैट्स द प्रॉब्लम. नहीं, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये 2 तो है, अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा. So exactly not harmonic mean, but this alpha, this a is replaced with alpha beta, alpha plus beta. And this is also, students, v is equals to u plus at. Yes. So a is replaced with alpha beta upon alpha plus beta. This is very important result that we have derived. So here v is equals to at, you can compare. So a equals to alpha beta upon alpha plus beta. So if question of this sort comes, yes, these kind of questions definitely come. So you can, in MCQ, you can directly find the answer within seconds using this formula. So distance will be, first of all, multiply the accelerations and then 2 into
Yes, important results, students. Yes, sir. So you can use these results directly. It's so simple. A is equals to alpha beta upon alpha plus beta. If you find this case that brake is applied, you have got both the accelerations and the acceleration and deceleration. So you can find the answer. Okay. Shall we move? Yes, sir. Students, now see, it will take time, but we are doing very important discussion, differentiation and integration, calculus. So we need calculus to solve the numericals. So very important discussions we are going to have. So let us first revise the rules of differentiation. Okay. Okay. First formula. Yes, d by dx of x raised to the power n. And next, and minus 1. Okay. Second formula. D by dx of axn. A is constant. So what happens to constant? It comes out. It comes out. So A into And x raised to power n minus 1. now d by dx of A. 0. Now d by dx of x raised to the power n plus 2 raised to the power m. Have you done? You have not done this type? So this will be by chain rule method. Chain rule we will apply. So what is chain rule? First we will differentiate xn plus 2 and then n. Okay, good. So students, we have to apply chain rule here. What is chain rule? Assume this as t. What you are assuming this as? T. So what do you get? You get d by dx of t raised to the power m. Right? अब तो ये इस जैसी इक्वेशन बन गई आपकी, फर्स्ट फॉर्मूला जैसा बन गया अब तो ये. Yes or no? Yes, sir. बट द डिफरेंस इज यहां पर बेस एक्स था, वेरिएबल एक्स था, और यहां पर टी है वेरिएबल. तो इसीलिए इसको पहले हमें वी नीड टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो चेन रूल क्या है? ये सपोज आपका था दिस होल बास y सपोज, सो dy by dx, and you have written this y in terms of t, right? This was your y and you have written it as y as t raised to the power m. So in terms of t, so first of all you have to derive it with respect to t, and then but you need dy by dx. So what shall I write here so that you get dy by dx? So dy you already have. You have to remove dt. So dt by dx. Yes, students, agree or not? Yes. We have already applied chain rule when we were deriving the equations of motion. Remember? A is equals to dv by dt. तो क्या था उसका?
यस, dv बाय dx into dx by dt. Remember? Yes, sir. So this was chain rule. तो बेटा इसमें क्या सेम से करना आपको. केमिस्ट्री में भी हम यूज करते हैं. सपोज 200 सेंटीमीटर्स, आई नीड टू चेंज इट इनटू मीटर्स. तो क्या करेंगे, 200 सेंटीमीटर है इक्वल्स टू आंसर चाहिए मीटर्स में, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करूं, मुझे तो यहां मीटर चाहिए तो मीटर से मल्टीप्लाई करूंगा ना. और सेंटीमीटर को खत्म करना तो नीचे क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा. यस और नो. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100. यस. तो बेटा ये चेन रूल है ना यूनिट्स चेंज करने के लिए. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 200 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यूनिट क्या बची, मीटर और 2 मीटर. सो 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर. आपको 365 डेज को सेकंड में चेंज करना है. केमिस्ट्री में किया है ना बेटा ये. तो देखा सब कुछ इंटीग्रेटेड आपस में. ये आप मान के चलो 365 डेज किस में चेंज करना आपको, इसे सेकंड्स में. यानी कि आपको सेकंड ऊपर चाहिए, डेज को खत्म करना है, तो नीचे क्या आएगा, डेज. तभी तो डेज से डेज कटेगा. और डेज का रिलेशन किसके साथ लिख दोगे आप, आर के साथ. अब मुझे आर खत्म करना है तो आर नीचे आएगा, ऊपर मिनट आएगा. अब मुझे मिनट को खत्म करना है तो मिनट नीचे आएगा, सेकंड ऊपर. तो पहले ये देखो सारा खत्म हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ डेज से डेज खत्म हो रहा है, आर से आर खत्म हो रहा है, मिनट से मिनट खत्म हो रहा है. तो इस तरीके से आपने यूनिट्स को चेंज कर दिया सेकंड में. अब इनके बीच का रिलेशन लिखो. 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. 1 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू. तो ये आ गया आपका सेकंड्स आ गए यहां पर 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60. तो चेन रूल में कोई दिक्कत है क्या हमें, No, sir. अब बेटा बात बन गई. Yes, sir. और यहां हमने चेन रूल ये इसलिए लगाया था, इफ यू रिमेंबर, कि यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dx बाई डी टी का v. तो एक्सेल एक और फॉर्मूला बन गया था v इंटू डी वी बाई डी टी, वी वी बाई डी एक्स. याद आ गया, dx बाई डी टी क्या हो गया v, और ये डी वी बाई डी एक्स. तो a इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले हो गए आपके पास, एक है डी वी बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दूसरा है v इंटू डी वी बाई डी एक्स. आज तो बेटा पावरफुल कॉन्सेप्ट क्लास चल रही है बिल्कुल एकदम से. चलें अब आगे. लॉजिक सीख रहे हैं ना आप, Yes, sir. तो एक बार इसको डिस्कस कर लो दोबारा से. डी बाई डी एक्स टारगेट था आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस 2 रेज टू द पावर एम. इसके भी दो तरीके हैं स्टूडेंट्स. पहला तरीका तो आपने मान लिया, t इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस 2, इसकी जगह लिख दिया आपने t. तो आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेज टू द पावर m. इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ ये टी रेज टू द पावर m. अगर यहां x रेज टू द पावर m होता तो सीधा लिखते m इंटू टी इंटू m माइनस 1, यही लिखते ना. लेकिन यहां बेस तो x नहीं है, प्रॉब्लम ये है, तो इसलिए आप लिखोगे इंटू डी टी बाई डी एक्स.
ओके, क्लियर? यस सर। तो आपने क्या किया है, आप ऐसे लिख लो, ये जो आपका ये y जो है आपका tm है, tm हो गया है, तो dtm अपॉन dt इंटू dt बाय, अब t को किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के, तो बात तो वही है, ये आपका dtm आ गया यहाँ। इंटू dt बाई dx, तो ये चेन रूल ही है। ओके, ओके। अब dt बाई dx निकालना आपको, dt बाई dx ये तो निकाल सकते हो आप, तो m इंटू टी रेज टू पावर m माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n प्लस टू, तो क्या हो जाएगा m इंटू, अब यहां पर वापस लिख दो आप, t की वैल्यू क्या थी, x रेज टू पावर n प्लस टू इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x रेज पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेज पावर n माइनस वन, और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। देखो हम इसको सिंगल स्टेप में ही करते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए इतने सारे स्टेप लिखे हैं, अब इसको सिंगल स्टेप में ही करेंगे हम। कैसे, ये जो अंदर वाला इसको एज इट इज रखो, इसको मान लो सारे को एक ही है, और फिर m आगे आ गया, पावर आगे आ गई, और पावर को 1 कम कर दो, ये देखो यहां हम भूल गए लिखना, ये यहां से यहां ये t लिख दिया ना हमने, फिर टी रेज़ टू m माइनस वन तो नहीं लिखा, और फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलो अब देखना आप कितना स्पीड से निकलेगा, आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ में आता है, अभी प्रैक्टिस करते हैं एक दो क्वेश्चन, देखना कितनी जल्दी से निकलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू रेज टू द पावर थ्री, बताओ जल्दी से क्या होगा, इसको सारे को फिक्स, इसको सारे को कीप इट एज इट इज, 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस टू रेज टू द पावर थ्री माइनस वन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका डिफरेंशिएशन, 2t प्लस 0। हाँ, 2t, ये स्टूडेंट्स x x होगा वैसे, यहां ये 2, ये x है, क्या है x, सो 2x, बस हो गया खत्म। अगला बताना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू इंटू रेज टू पावर टू, बताना फटाफट। 2 bracket open x cube plus 2 हाँ, and then multiply by 3x, just here. बस खत्म। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू रेज टू द पावर माइनस वन, minus 1 bracket open x square plus 2 multiply 2x. यही आएगा? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। इसका बताओ। Minus 1 into bracket 2ax plus 3 base to the power minus 2 multiply मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन 2a. 2a, बस अब याद हो गया स्टूडेंट्स ये कैसे करना है, सिंगल स्टेप। अब करें क्वेश्चन। और ये बताओ, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ टी रेज टू द पावर एन हो तो क्या होगा?
सबसे पहले वही करेंगे, टी रेस्ट पावर का क्या होगा, एन टी एन माइनस वन इंटू डी टी बाई डी एक्स, फिर इसका टी का जो अंदर अंदर था, यहां पे तो यही किया है, इन सबको टी तो माना था आपने, सबको क्या माना था आपने, जो अंदर था टी, तो पहले उसका डिफरेंशिएशन किया आपने, टी को एज इट इज लिखा, वही तो किया आपने, और फिर उसके बाद क्या किया, जिसको आपने टी मानना था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बेटा ये डिफरेंशिएशन के ये जो रूल्स हैं एक पेज पे लिख लो, ठीक है। Shall we start our questions now? Numericals. Ready? Yes. बस फिजिक्स में रीजनिंग है बस, और तो ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं। चलो, द रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन इज the relation between t and x is given by t is equals to ax square plus bx, okay, where a and b are constant. Express instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity. और देखो यहां प्रॉब्लम पता है क्या है, उसने एक्सेलरेशन सिंबल ए यहां पहले से ही ले लिया है कांस्टेंट, तो ये एक्सेलरेशन अलग है, अब इसका सिंबल आप क्या लोगे, व्हाट सिंबल यू विल टेक, एफ ले लो, या एक काम और कर सकते हो, यहां पर जो ये ए है इसको सी लिख लो पहले, जिससे कंफ्यूजन ना, और लास्ट में सी की जगह ही लिख देना, ये एक तरीका है इसको करने का, आपको ध्यान होगा वी हैव यूज्ड दिस स्ट्रेटजी अर्लियर आल्सो, याद आया कुछ, कल भी यूज की थी ना ये स्ट्रेटजी, Yes, sir. क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन क्या दे रखा था आपको, एफ दे रखा था, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हमने ए ही मानना था, उसको क्वेश्चन अनुसार नहीं किया था, और लास्ट में फिर ए की जगह एफ पुट कर दिया था, रिमेंबर। तो आप ये मानो टी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। Yes, sir. तो बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फॉर्मूला पता है ना, dv बाई डी टी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर्मूला भी आपको पता है, dx बाई डी टी, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना आपको, और ये चीज गिवन है आपको, अब ये तीन चीजें गिवन है आपको, dv बाई डी टी खत्म करना है, dx बाई डी टी खत्म करना है, ए वी के बीच में रिलेशन बताना है, आंसर बता दूं, एक्सेलरेशन विल बी माइनस टू सी वी क्यूब, चलो ये प्रूव करना लो, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया आपका, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई वी क्यूब, और ये सी जो है कांस्टेंट हो गई, बी को खत्म करना, ठीक है। चलो ये प्रूव करना आपको, ओके, ये गिवन हो गया आपका, क्वेश्चन अच्छा है, वी तो निकाल सकते हो बेटे, कैसे निकालोगे वी, याद है क्वेश्चन हमने किया था जिसमें सेम सेम कहानी थी, थोड़ी सी सेम, क्या मतलब थोड़ी सी मिलती जुलती कहानी थी, याद आया, हमने किया था, हमारे को ऐसे दे रखा था, t इज इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 3, क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए अब तुम्हें, 2 दिन पहले किया था ये क्वेश्चन, रिमेंबर, Varying both sides, sir. हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सेलेंट,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था क्योंकि हमें dx बाई dt निकालना था, तो x की वैल्यू पुट करनी थी, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया था हमने और ये आ गया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद x की वैल्यू आ गई थी, यहां से देख लो t-3 का स्क्वायर, और ये t-3 स्क्वायर हमने यहां पुट कर दिया था dv बाई dt में। ये याद आया कुछ? तो वैल्यू आ गई थी dv बाई dt इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, v इक्वल्स टू dx बाई dt, तो d बाई dt ऑफ t-3 रेज टू द पावर 2। अभी सिखाया ना कैसे करेंगे इसको, या तो हमने पहले किया था, इसको पूरे को ओपन किया था हमने, याद है? Yes, sir. अब बिना ओपन करके दिखा मुझे सीधा, चलो। ब्रैकेट ओपन हाँ माइनस 3 रेज टू पावर 1 हाँ, मल्टीप्लाई 0 नथिंग। नहीं नथिंग तो जीरो तो नहीं आएगा, सब जीरो हो जाएगा। t-3 का डिफरेंशिएशन यही करोगे ना आप, और t-3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1, बस। तो उसमें भी यही आया था आपका 2t-6, ठीक है ना? तो उसमें आपने कैसे किया था, लेकिन उससे आपने किया था d बाई डी टी, इसको ओपन किया था t² माइनस 6t प्लस 9, ऐसे किया था आपने, और यहां से आपने किया था फिर 2t-6, याद आया? तो बेटा यही है फिजिक्स की खासियत, मैथ्स की भी, कि आप कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बस आंसर वही आना है। लेकिन आपको जितने ज्यादा तरीके पता होंगे उतना ही ज्यादा आप कंसेप्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब एक तीसरा तरीका भी देख लो। पहला तरीका आपने ये देखा, दूसरा ये देखा, अब तीसरा, मतलब तीसरा क्या, ये पहले के दो तरीके हैं, दो, ये पहले के दो तरीके हैं, पहले के दिस और दिस। पुट आपने वैल्यू x की है, मैं कह रहा हूं अब x की मत पुट करो, अब आपको ये गिवन था ना, और निकालना क्या है आपको, dx बाई डी टी। तो आप ये भी तो कर सकते हो, dt बाई डी एक्स निकाल लो और उसका इन्वर्स कर दो, ये भी तो कर सकते हो। भैया आपको dx बाई डी टी निकालना था ना, लेकिन गिवन आपको t की फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे, d t बाई डी एक्स निकाल लो, ये तो निकाल सकते हो। तो क्या आ जाएगा बताना, √x प्लस 3, तो √x का बताओ क्या होता है, अरे बोलो ना, अरे x की पावर 1/2, 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, और 3 का तो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स dx बाई डी एक्स का होता है 1, d बाई डी एक्स ऑफ √x होता है 1/2 √x। ओके, ये वही हो गया ना बेटे, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. इसको क्या लिखोगे आप, 1/2 √x लिखोगे ना, यस सर। तो dx बाई डी टी क्या आ जाएगा, आपको तो वेलोसिटी चाहिए थी ना dx बाई डी टी, तो इसका इस इधर से इसको इनवर्स किया, इसको भी इनवर्स कर दो 2 √x, और √x की वैल्यू पुट कर दो, √x की वैल्यू क्या है, t-3, सो 2 इंटू t-3, तो क्या आ गया 2t-6, वही आ गया, है ना मजेदार बात। यस तो अगर आपको dx बाई डी टी निकालना है और आपको दे रखा है t, तो क्या करो, Reciprocal. हाँ पहले dt बाई डी एक्स निकालो, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, चलो। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा
बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आज की, आप हर तरीके से डिफरेंशिएशन सीख गए हैं। अब चलें अब आगे, नोट डाउन हो गया। इसको रीराइट करना, Yes, sir. हाँ 2 बार रीराइट करना, एक आज ही कर लेना, एक कल सुबह उठते ही, ठीक है, तभी कंसेप्ट पे पकड़ बनेगी। चलो करें प्रूव। अब तो घुमा सकते हो आप बात को, अब तो कुछ बात ही नहीं रह गई है। ये टी दे रखा है, अब तुम्हारी मर्जी है इसको कैसे निकालोगे। वी में भी वी को निकाल लो पहले, फिर वी को यहां यूज कर लो। तो डी टी बाई डी एक्स निकाल लें, हाँ, Yes, sir. और फिर उसको क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो वी आ जाएगा अपना, ठीक है। तो निकाल लो चलो। तो टी का कर सी एक्स कर, 1/2cx plus तो cx. क्या आएगा बता, हाँ 2cx, गुड। 1/2c. I am telling the final value. हाँ फाइनल वैल्यू ये आ गया बी। भाई इसका डिफरेंशिएशन किया, सी बाहर आ गया, 2x² का क्या हो गया 2x, बी एक्स का क्या हो गया बी। अरे यस और नो। Yes, sir. तो देयरफॉर dx बाई dt क्या हो गया, 1 रेसिप्रोकल कर दो इसका, हाँ या ना। Yes, sir. तो बेटे ये क्या हो गया आपकी वेलोसिटी, क्लियर। Yes, sir. अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ना, तो dv बाई dt कर दो। तो क्या होगा इसका करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, या फिर आपके पास एक फार्मूला और है, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और v आपको गिवन है, तो क्या फार्मूला, और v x की फॉर्म में गिवन है, या अभी अभी तो ड्राइव किया था v इंटू, अरे ये था ना, एक तो dx बाई dt और दूसरा फार्मूला v इंटू dv बाई dx, हाँ या ना। Yes, sir. v ये दे रखा आपको, और क्योंकि इसमें x वेरिएबल है तो इसलिए फार्मूला लगा रहे हैं हम, क्लियर। अरे बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें, No, sir. तो चलो बताओ फिर। a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये, 2cx प्लस बी रेज टू द पावर -1। इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, जो आपने v की वैल्यू लिखी है ये ऐसे कैसे, ठीक, यहां से, और यहां भी आपने v की वैल्यू पुट कर दी, तो इसका डेरिवेटिव अभी कराया था, ये पावर आगे आ जाएगी -1 इंटू 2cx प्लस बी इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2c. 2c, ठीक है, b का तो 0 हो जाएगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स। Yes, sir. यहां पावर कितनी आएगी, ये पावर -1 चलेगी, इसकी पावर माइनस कर दोगे ना, -1 आगे चला गया इसकी पावर, यहां तो कितनी आ जाएगी इसकी पावर, -2। Yes, sir. बेटा यहां ये क्वेश्चन किया तो था आपने, ये देखो ये पावर माइनस में थी, देखो तो क्या रिजल्ट दिखा था आपने दोनों के, कि ये तो है सिमिलर क्वेश्चन, आ गया याद। यस बेटा डन। Yes, sir. तो a इज इक्वल टू आपको आंसर v पुट करना है वापस, ये देखो पावर -1 और -2, तो कितना हो जाएगा टोटल, Minus. -3।
और v की वैल्यू, v किसके इक्वल है, इसको मान लो आप सपोज इक्वेशन नंबर 1, 2cx माइनस बी रेस्ट टू माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा सारा का सारा, ये सर 2c v cube v क्यूब हो गया, माइनस आगे आ जाएगा इंटू 2c, तो आ गया ना आपका आंसर भाई। तो a इज इक्वल्स टू -2c v क्यूब। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल्स टू 2cx प्लस b रेज टू द पावर -1, तो हमने इसको यूज किया है। ठीक है, yes sir तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। a और v के बीच में रिलेशन निकालना था, t हमें गिवन था, t और x के बीच में रिलेशन, यहां से हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकालकर और यहां पुट कर दी। एक ये फार्मूला था, लेकिन अगर ये t की फॉर्म में होता तो मैं ऐसे पुट कर दे, लेकिन t की फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में था, x की फॉर्म में। तो अगर t की फॉर्म में तो ये फार्मूला लगाना चाहिए, x की फॉर्म में तो ये फार्मूला। तो वेलोसिटी जो है, अरे यहां पर खुद तो कुछ नहीं बोलते, ये dx बाई डी टी नहीं आएगा, ये आएगा dv बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले कितने आ गए, a इज इक्वल्स टू पहला dv बाई डी टी, अगला v इंटू dv बाय dx, तीसरा यहां v किसके इक्वल है, dx बाय dt के। तो यहां से एक फार्मूला आ गया, दो बार डिफरेंशिएशन करो, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर। ओके, तो एक्सेलरेशन का एक फार्मूला, ये दूसरा और ये तीसरा। चलो एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? No, sir. no sir no sir तो बेटा देखो, हमने कौन सा फॉर्मूला हमें यहां लगाना था, ध्यान से देखो, हमें यहां गिवन था v, और किस फॉर्म में, x की फॉर्म में। तो v गिवन था x की फॉर्म में, तो इसलिए dv बाई dx का फॉर्मूला लगाया यहां पर एक्सेलरेशन के लिए। क्लियर हो गया क्यों लगाया फॉर्मूला? yes sir v अगर t की फॉर्म में गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, v अगर x की फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओगे। और अगर आपको v गिवन ना हो के x गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर x इज ए फंक्शन ऑफ t, अगर ये गिवन है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपको v दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ t, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, a इज इक्वल टू dv बाय dt। और v दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, v into dv by dx हाँ। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल जो है जेई एडवांस के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करते रहो जो नोट्स है मेरे। ये टीचिंग तभी फायदेमंद है जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे बेटा। ओके, चलो एक क्वेश्चन करें अब, है बेटा। चलो और थोड़ा सा, क्योंकि इनके ऊपर कंसेप्ट जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं, और सीखना तो है ये। अब डरने से काम चल जाएगा क्या, है बेटा? no sir चलो, तो एक वीटी रिलेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ओके, और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, राइट।
और हमें बताना है कि 3 सेकंड्स में, टाइम 3 सेकंड है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये। ओके, ये हमें बताना है। और रिलेशन क्या गिवन है वी और टी के बीच में? v इज इक्वल्स टू के टी, वेयर k इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दे रखा हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? v क्या दे रखा आपको? 2t। यस Yes, sir. Yes, sir. बेटे क्वेश्चन बहुत आसान है, x की वैल्यू निकालनी है। ये डिस्टेंस कितना है x टोटल यहां से यहां तक, 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये रिलेशन दे रखा आपका वेलोसिटी के साथ। तो डिस्टेंस आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है या ना? Yes, sir. लेकिन सबसे जरूरी चीज है, ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं व्हेन a इज कांस्टेंट। सर इसका मतलब क्या है? a शुड नॉट बी ए फंक्शन ऑफ t। a t का फंक्शन नहीं होना चाहिए, a शुड बी कांस्टेंट। ओके, तो पहले चेक करो a की वैल्यू कितनी है इसमें। यहां से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप निकाल लोगे, निकालना dv बाई dt कितना आया? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 3 फॉर्मूले थे ना। v किसका फंक्शन दे रखा है? अरे v दे रखा है ना आपको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? dv by dt. अब तो याद हो जाना चाहिए आपको, ये लगा दिया ना इसलिए dv बाई dt। समझे क्यों लगाया? तो अब t की वैल्यू पुट करो 2t, तो बेटा कितना आया बताओ? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2 क्या है? कांस्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक मिनट ध्यान सुनो, ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो पहले। यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? मोशन हमेशा, जो मोशन वर्ड है ये वेलोसिटी के लिए यूज होता है। आई बात समझ में? याद रखना मेरी बात को। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो अलग अलग चीजें होती हैं, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो फर्स्ट केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन इज 0। ये है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे अब आपका ये निकला है। आई कुछ बात समझ में? तो एक्सेलरेशन इस केस में भी कांस्टेंट है और इसमें भी कांस्टेंट है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, डिसेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, चाहे वो 0 हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो। अगर वो कांस्टेंट है तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो। तो इन केसेस में आप इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, जो आपकी इक्वेशंस हैं ये तीनों। और अब अगली बात समझ लो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वही मतलब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वही मतलब है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही है। ये आपकी जर्नी थी 0 से ये x तक 3 सेकंड तक। मैंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फंक्शन निकालता हूं मैं, जब भी ये डिफरेंशिएट करता हूं मैं, क्या निकालता हूं? क्या आता है मेरा? स्लोप फंक्शन। क्या आता है? हाँ, ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये मेरा फंक्शंस हैं,
और ये स्लोप फंक्शन है जो dv/dt आप निकाल रहे हो, तो डिफरेंशिएशन से स्लोप फंक्शन मेरे पास आता है। तो dv/dt जो है वो क्या है, ये अगर फंक्शन है तो dv/dt स्लोप फंक्शन, यानी कि ये आपको किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पे आपको स्लोप निकालना है, किसी भी टाइम एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको बता देगा। तो यहां पर आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 है, यानी कि हर जगह यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह 2 है, यानी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी वही है, सिर्फ एक्सेलरेशन बोल लो वो भी वही है, एवरेज एक्सेलरेशन बोल लो वो भी वही है। तो इन पांचों का मतलब एक ही है। जब भी उसी तरह यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब भी वही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब भी वही है। सिर्फ वेलोसिटी बोलो उसका मतलब भी वही है, एवरेज वेलोसिटी बोलो उसका मतलब भी वही है। तो सब के सब सेम है। ये अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो इंस्टेंटेनियस भी वही है, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सब एक ही चीज। उसी तरीके से अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब एवरेज भी वही है, इंस्टेंटेनियस भी वही है और एक्सेलरेशन वही है। तो एक्सेलरेशन नॉर्मली हम इंस्टेंटेनियस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब ये कांस्टेंट ही है तो सारे एवरेज वगैरह सब सेम हो जाएंगे। उसी तरह अगर ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है तो इंस्टेंटेनियस भी वही है, एवरेज भी वही है, वेलोसिटी भी वही है, कांस्टेंट भी वही है। और इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस में लगा सकते हो। इसमें a 0 है तो इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपका, और इसमें भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आप इक्वेशंस ऑफ मोशन सर कब नहीं लगा सकते, जब आपको दे रखा हो a इज इक्वल टू 2t, a इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, समझ रहे हैं? तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने डिराइव की थी तो उस समय कंडीशन मानी थी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जब आप कोई रिलेशन ड्राइव करते हैं तो आप पहले कुछ एजम्पशंस मानते हैं, कुछ बेस मानते हो, उस एजम्पशंस के बेस पे ड्राइव करते हैं। जब आपकी एजम्पशन ही रॉन्ग हो गई तो उसके रिजल्ट कहां से एप्लीकेबल हो जाएंगे? तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव ही इस बेस पे की थी कि ए कांस्टेंट है। देख लेना, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने ड्राइव की थी ए कांस्टेंट माना था सभी में, चाहे ग्राफिकल हो, चाहे एल्जेब्रिकली हो, चाहे कैलकुलस वाइज हो, सब में ए कांस्टेंट माना आपने। चलिए, तो स्टूडेंट्स लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन। आंसर इज 9 मीटर। हाँ 9 बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। अब गाड़ी स्पीड पकड़ गई आपकी। अब ए कांस्टेंट आ गया, समझ गए? ए कांस्टेंट आ गया तो अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एस इज इक्वल टू यू 0 है हमारा, और हाफ इंटू ए 2 हो गया, और टी स्क्वायर, टी कितना है 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, 9 मीटर इज योर आंसर। स्टूडेंट्स ये सारा जो डिस्कशन है ना, जिससे इसी से बच्चे जो है थोड़ा सा लगता है कि उन्हें क्या करा रहे हैं, लेकिन यही असली कंसेप्ट है, यही असली फिजिक्स है। ये डिस्कशंस उस चीज को ऐसे समझना, ऐसे समझना, लेकिन इनको 3-4 बार लिखो। पहले भी जो मेरी वीडियो थी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की, उनको भी देख लेना। जो आपको मुश्किल लगे सोचो वो उतना इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लेना आप। तो धीरे धीरे अपने आप इजी लग जाएगा, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। स्टूडेंट्स एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, केमिस्ट्री क्लास तो आज हो नहीं पाएगी फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी। Shall we do last question of today? Okay, good. That's the spirit. ये मतलब हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई बोझ थोड़ी है हमारे दिमाग के ऊपर। ओके, द एक्सीलरेशन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझे ध्यान से। ये क्वेश्चन है, ये बोट जो है मूव कर रही है, ओके, और यहां जो है, यहां आकर बोट का इंजन ऑफ हो गया, इंजन कट ऑफ बोल दो, इंजन स्विच ऑफ बोल दो, बंद हो गया इंजन यहां से, यहां इस पॉइंट पे,
ये ए से बोट चली थी, बी पे इंजन बंद हो गया उसका, ठीक है। और इंजन बंद होने के बाद अब जो एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, ओके। और के इसमें कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। और यहां आकर जो वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो गई उसकी। और यहां हमने उसको नोटिस शुरू किया, टाइम 0 था, जो जब टाइम 0 पे नोटिस शुरू करना शुरू किया तो यहां वेलोसिटी आप u भी ले सकते हो और v नॉट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। एक और ढंग है लिखने का, अगर टाइम 0 होता है तो आप v नॉट ले सकते हो। निकालना क्या है, ये टाइम है, इससे पहले ये वेलोसिटी 0, इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये t टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, ये आपको निकालना। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या बना आपका, ये पॉइंट यहां से यहां कुछ वेलोसिटी थी, और उसके बाद टाइम टी के बाद यहां वेलोसिटी कितनी होगी, और एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। और आंसर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, आंसर आपका आएगा v इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस 2 KT वी नॉट स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी। चलिए निकालें। Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो आप उसके अंदर इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका ए है ये किसका फंक्शन है, ए इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज चेंजिंग, एक्सेलरेशन नई नई वैल्यू आएंगी एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी अगर 2 है तो एक्सेलरेशन अलग आएगा, वेलोसिटी अगर 2.1 हो गया तो एक्सेलरेशन अलग आएगा। आप देख रहे हैं इस बात को। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कैसा है, Non-uniform. तो इसका मतलब यू कैन नॉट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसलिए किस पे जाएंगे हम, देयरफॉर कैलकुलस मेथड। समझ गए स्टूडेंट सब ये बात? Yes. तो कैलकुलस में आपको वी का ए का फॉर्मूला पता ही है, ए क्या होता है, dv बाय dt। यस, और क्या फॉर्मूले लिख होते हैं इसके, V into dV by dt. हाँ, v इंटू डी वी बाई डी टी और dx स्क्वायर बाय, V by dx. हाँ। अब आप ये बताओ, यहां पर आपको दे रखा है a इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, अब आप क्या यूज करोगे इसके अंदर, या तो अब यहां ए तो नहीं है ना किसी में भी जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो, भाई v एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखी है तो ये यूज करोगे, ये x आएगा स्टूडेंट्स नीचे, v एज ए फंक्शन हो तो ये यूज करोगे, और अगर x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है तो ये यूज करोगे। तो लेकिन यहां पे ना तो आपको x दे रखा है ना v दे रखा है, यहां तो a और v दे रखा है, तो क्या वो इन टर्म्स ऑफ t दे रखा है, नहीं, इन टर्म्स ऑफ a है।
तो स्टूडेंट्स ये अलग केस है, देख रहे हैं आप, इनमें से किसी से मैच नहीं करता ये केस। तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के बजाय इंटीग्रेशन क्या यूज करेंगे। तो करना a इज इक्वल्स टू dv बाई डी टी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, dv बाई डी टी किसके इक्वल है, माइनस के वी क्यूब के, है ना, a की वैल्यू, यस। भाई आप a की वैल्यू पुट कर दो ना, a किसके इक्वल है, ये है ना, तो ये a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या आ गया, माइनस के वी क्यूब इज इक्वल्स टू dv बाय dt। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। नो सर। तो बेटा अब आप एक बात देखो, जब आप इंटीग्रेट करते हो इसमें ध्यान दो कि ये dv इंटू डी होना चाहिए, सॉरी, ये यहां जो भी आपका फंक्शन हो, अगर वो x में है तो यहां dx होगा, अगर वो फंक्शन t में है तो यहां t होगा, अगर वो फंक्शन v में है तो यहां dv होगा। ये ध्यान रखना आपको हमेशा इंटीग्रेशन में। क्लियर है ये बात। यस सर। यस सर। तो यानी कि अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो t इधर चला जाएगा, तो माइनस के वी क्यूब डी टी इज इक्वल्स टू, और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप ये बताओ, ये आपका dt है और ये क्या है, यहां जो फंक्शन है डेट इज ए फंक्शन ऑफ t, ये सिचुएशन आपके सामने ये है, f ऑफ v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू डी वी। तो क्या कहता है आपका दिमाग, ये फंक्शन ऑफ v किधर होना चाहिए, dv की तरफ या dt की तरफ, dv की तरफ। तो इसको बेटा यहां लाओ, यहां, ओके। हाँ तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, इस इक्वेशन को रीराइट करो। भाई ये इधर पावर प्लस में, इधर आगे पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा बस, और क्या डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस के इंटू डी टी इज इक्वल्स टू वी रेज टू पावर माइनस 3 dv। अब बन गई बात। यस सर। अब चलें, चलो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस बाहर चला जाएगा। अच्छा लिमिट्स बताओ, लिमिट्स, यहां क्या था मेरा टाइम, t क्या था 0, यहां टाइम कितना है t, तो टाइम की लिमिट क्या हो गई 0 टू, ये dt है ना, टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम की लिमिट्स लगाएंगे। इधर क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट्स लगाएंगे, कहां से कहां तक। जब 0 टाइम था तो वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट। जब टाइम t था तो वेलोसिटी कितनी थी, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, dt क्या होता है t, ओके। हाँ तो चलो, और फिर लिमिट्स लगा दो ऐसे कैसे। अब v क्यूब का इंटीग्रेशन, ये आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1, पावर 1 इंक्रीज करो और उसी से उसको डिवाइड कर दो। इज दिस क्लियर। यस सर। तो चलो बेटा इसकी पावर इंक्रीज कर दो, तो क्या हो गई, पावर प्लस 1 करोगे तो, और डिवाइडेड बाय माइनस, और क्या आ गई लिमिट्स v नॉट टू v। क्लियर है। यस सर। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। नो सर। चलो तो माइनस के
अब फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो एक बार पुट करो इस t की जगह फाइनल वैल्यू क्या आपकी t, तो t की जगह t लिखो एक बार, माइनस फिर t की जगह क्या लिखो 0 लिखा। अब यहां पे क्या लिखो v, तो क्या v रेस पर -2 अपॉन, अब -1/2 को तो बेशक पहले बाहर ही लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, -1/2 बाहर लिख लो। चलो, तो क्या पहले v पुट किया, अब उसके बाद से क्या पुट करेंगे v0, तो माइनस v0 रेस्ट पावर -2। कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ सर क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये देखो, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद -1, ओके, और ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपको आंसर में 2kt चाहिए, तो 2kt तो आ गया आपका, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी रेस पर -2 का मतलब क्या है v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन v0 स्क्वायर। क्लियर है? वैल्यू किसकी निकालनी है v की, तो v0 को उधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/v स्क्वायर इज इक्वल टू 2kt प्लस तो बेटा बोलते क्यों नहीं, ये हो गया ना, यस सर। डेट इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या आ गया v0 स्क्वायर 2kt v0 +1 आ गया ना। यस सर। तो v क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और अंडर द रूट, आ गया आंसर। क्लियर है यस सर क्लियर। भाई, v इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल कर दो और अंडर द रूट कर दो। चलो, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।